Agarwal, on behalf of the Department of Commerce, Deen Dayal Upadhyay College, with great joy and immense exultation, extend a warm welcome to all present here for the workshop on corporate accounting. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels the darkness of might. Similarly, blessings bring in prosperity and happiness. To make this morning a blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I invite our admirable officiating principal, Professor Hemchand Jain, to accompany our highly regarded chief guest, Professor A.K. Singh, the chief speaker of the session, Professor P.C. Tulsian, to kindle the lamp. I also invite all the dignitaries for the same. Ma'am, excuse me. Ma'am. आइए प्रोफेसर आइए आप दोनों साथ भी चल सकते हैं एक ही बार में एक ही साथ हम लगा सकते हैं ठीक है यस सामने देखिए मैम थोड़ा सा Further request all the dignitaries to kindly come over to the dais and occupy their distinguished seat. Hinton sir, please. I request you all to stand up in respect to our national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. And take your seat. I would now request Professor Hemchand Jain to give a green welcome to our dignitaries who are people of distinct vision, idol of knowledge and experience, and inspiration to all of us.
I would request, sir, our officiating principal to welcome the august gathering. Our colleague in the Department of Commerce, University of Delhi, Professor Urvashi ji, Professor Ritu Sapra ji, Professor Amit Singh ji, and I expect Ashish ji also joining us shortly. He is not well. Okay. All the participants for this workshop who have joined us from different colleges, and they will be gaining some useful information as well as some new techniques which are there in the corporate accounting paper. Since we have started 15 minutes late, so I would not like to spend much time in the inaugural speech. Rather, I will request the organizers to start with the program, whatever is there. Meghna, thank you for joining us in today's morning, and Thank you so much, sir. I feel honored to have with us Professor Amit Kumar Singh, who has made all of us proud through his distinguished work in numerous capacities. Professor Amit Singh is the professor at the Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. He obtained his MPhil and PhD degrees from the Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. He has a teaching experience of more than 19 years, and his areas of specialization are finance and investment management, initial public offerings market in particular. He is the life member of the Indian Accounting Association of India and Indian Commerce Association. Recently, he has also been elected as Vice President of the Delhi chapter of Indian Commerce Association. He is also bestowed as IIF Laureate 2021 with the IIF Research Professor Award 2021 for his unparalleled contribution to the field of commerce. I would now request you, sir, to please introduce the workshop to the participants. A very good morning to one and all who are present here. Professor Ajay Kumar Singh, sir, Head and Dean, Department of Commerce. Professor Hemchand Jain, sir, Principal, Deen Dayal Upadhyaya College. Professor R.P. Tulsian ji, P.C. Tulsian ji, Professor Urvashi Sharma ji, Professor Ritu Sapra ji, other faculty members of different colleges of University of Delhi, dear friends and dear students. It's a great honor and privilege for me to be invited to speak on this occasion. I am extremely thankful to Deen Dayal Upadhyaya College for this conducting this one-day workshop on the very important theme, that is corporate accounting. And I'm thankful to Dr. P.C. Tulsian ji for agreeing and ready to share his thoughts on this important topic. Friends, as you know that the journey of this GC interface was started back in 2019 under the headship and deanship of our former head and dean, Professor R.K. Singh ji. It was his brainchild to start and to bridge the gap between the department and college teachers. In the past, we have conducted around 10 programs in different colleges of University of Delhi, and I'm thankful to Rajdhani College for taking the initiative of starting this program of DC Interface. We have also conducted around 5 FDP programs, 2 international conferences, and more than 80 guideline meetings during the last 3 years, online and offline. During all these events, recently also we have conducted 2 international conferences, one with collaboration with the Shri Guru Gobind Singh College of Commerce and Shahid Bhagat Singh College. Also, more than 700 commerce teachers from roughly 60 University of Delhi colleges participated in the organization of all these events. And even professors, teachers, and even students who are not affiliated with the University of Delhi colleges have taken part
and demonstrated a genuine interest in learning about the concept of commerce. The interface activities not only expand the attendees' knowledge bank, but they also have the long-term effect of improving idea clarity among teachers as well as students. I also want to tell you that under Professor A.K. Singh sir, as department has come out with the new CBCS syllabus, and I must compliment our head and dean for introducing a lot of new papers in the area of finance, marketing, HR, OBs, and now I'm looking forward to all the college teachers to come forward and conduct the meetings in their respective colleges for these papers. So, as I know that there is a paucity of time, so once again, I am really thankful to Deendayal College for inviting me, and I'm looking forward for this workshop. Thank you so much. Thank you so much, sir. We even are looking forward for the same. I would now invite the convener of the Department College Interface, Department of Commerce, Professor Ritu Sapra, who has always inspired hope, ignited the imagination of, and instilled a love for learning among students. May we have a round of applause for her. Good morning, respected Professor Ajay Kumar Singh, sir, Head and Dean, Department of Commerce and Faculty of Commerce. Good morning to the Principal and PC Tulsianji, my colleagues, Professor Amit Kumar Singh and Professor Urvashi, and all the faculty members who have come from various colleges. Today, the focus is basically what we need to teach in the corporate accounting. What I would like to say is that our focus should be how to increase or how to enhance the employability of our students in the field of corporate accounting. So whatever is required for them to implement in real life situation when they go for a job or even they create their own job opportunities, that is, they become their own entrepreneurs and all. So our focus should be in each area, not only in a corporate accounting or any other accounting, is to learn and teach, impart the same learning to our students so that they'll become employable. And since in the new course of the coming or the new session, there are many changes were incorporated in accounting area, which I can say because I was looking after accounting area. So the rigorous work of curriculum design is already being done. It is still in the process. Sir is always open for any kind of suggestion, and we keep on getting mails from Sir daily on, I think, several mails he forwarded to us that these are the suggestions which we got from the various faculty members. And you look into, you can again, conduct a meeting. So he's so open for such changes. So this is our luck that Sir is here and he always welcome whatever need to be incorporated for the students. So our focus should be for student and our orientation towards student should be there. So that's all. That's all I would like to say. The rest, I think, Dr. PC Tulsian will deal in the workshop, and you all will, give your suggestions and incorporate what need to be done, because this is only we can, make any curriculum or any subjects much better. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for letting the participants know the objective of the workshop for which all of us have gathered here. I'm profoundly delighted to take the opportunity to introduce the chief guest for the day, Professor A.K. Singh, who is currently the Dean, Faculty of Commerce and Business, Delhi School of Economics, University of Delhi. Professor Singh is Honorary Professor of John von Neumann University, Hungary, and formerly Vice-Chancellor of Sri Sri University, Cuttack, Odisha. Professor Singh is Fellow and Managing Trustee of Indian Commerce Association, immediate past President of Indian Commerce Association, Delhi NCR Chapter, past President of Rotary Club of Delhi, Moria,
past President of Indian Association for Management Development, Fellow of Computer Society of India, Honorable President of Governing Body of the Divine Group of Institutions, DSPSR, and many NGOs. Professor Singh has earned Best Teacher Award for 2 consecutive years in 1998 and 1999 at IAMT, 9 Best Research Paper Awards, 45 awards of national and other levels, 12 international awards and distinctions have been conferred, including 2 gold medals, 1 silver medal, and other distinctions. Professor Singh was conferred by Indian Commerce Association the Best Business Academic of the Year Award 2011, Gold Medal, and MMSM Research Award 2011 and 2012 Gold Medal. Professor Singh has 34 plus years of teaching experience in all, with 227 publications, including 10 books, 1 international monograph, 118 research papers, 13 articles, 16 case studies, 59 editorial reviews, 2 abstracts, and 8 book reviews published in leading journals with total citations of 658, H index of 11, and I-10 index of 15 as on May 4, 2022, as per Google Scholar citations. 35 scholars have been awarded PhD degree and 17 scholars have been awarded MPhil degree under his supervision. Professor Singh has traveled to 23 countries and addressed more than 200 conferences, seminars, workshops, training programs, and in more than 100 online sessions or webinars during pandemic time. Professor Singh is a blend of a teacher and researcher, coach and mentor, trainer and consultant, sadhak and yogi, and counselor and healer. I would request the Honorable Chief Guest, Professor A.K. Singh, to address the August gathering and enlighten us with his words of wisdom. Before Professor Singh, I would like to invite Dr. Urvashi, Professor Urvashi, to address the gathering. No, I'm Professor and Doctor both, you can say. It's, very good morning to all of you. Thank you for inviting me to speak something on this, in this August gathering. First of all, respected Honorable Head and Dean, Professor A.K. Singh Sir, Hemchand Jain Sir, Principal, Professor P.C. Tulsian Ji, and Amit Kumar Ji and Ritu Sapra Ji. I mean, both are my colleagues, and it's very wonderful that what we do in the department and under the able guidance and leadership of Professor A.K. Singh Sir, who is definitely as sitting at that position, from his face and voice, it will not be visible that how much work and stress, the positive stress he takes, but he is always cool and calm and always open towards everything, whatever comes in the department for any cause, because there are n number of things which are going on in the department, and n number of committees are there, so as in the colleges also. But let me speak about this, particular the concern which has been started, I think 2-3 years back, and Professor Amit Kumar Ji has done a wonderful job in department college interface, and it is very rigorous work of Professor Amit Singh Ji, who has I think conducted a lot of guidelines meeting. And this concept, as I entered the hall, I have seen that few concerns were raised by the faculty members teaching corporate accounting. So definitely, whatever the concern is, we will be trying to solve it and make it like convenient place for the commerce department at least to run smoothly as far as possible. And it is very nice that I am here and a part of this this committee, interface committee. And let us now hear to Professor Tulsian Ji, who is an expert in this field. Thank you so much for the invitation. Thank you, everyone. Wish you all the best. Thank you so much, ma'am. So please.
Good morning, namaste. Good morning. How are you? Good? Very nice, very nice. CA Dr. P.C. Tulsianji, who is the chief speaker of today, who would be addressing on a very specific theme today, which is a beginning of a new era in terms of not only conducting guideline meetings, but also conducting developmental agenda meetings as well. So it's not only about corporate accounting, what it exists today, it is also about what corporate accounting should be in the future. So it should not be treated only as something which is for 2022-23 or so. This is a forum which can discuss anything that you want to. Thank you, P.C. Tulsian sir, for agreeing to be the chief speaker of today. Give a round of applause to him. Dr. Hemchand Jain sir, the principal, Deen Dayal Upadhyaya College, a very generous person who always agrees to whenever we say that we want to do something in collaboration with Deen Dayal Upadhyaya College. He has never said no. So a round of applause for the person who is associated with Indian Accounting Association, also office bearer there. And since it is accounting area workshop, so we thought Indian Accounting Association should be partner in this. And in the future, I would suggest that all the Indian Accounting Association, Indian Commerce Association, all the other associations to take this responsibility of ensuring the capacity building exercise with the teachers of the university. It should not be only the responsibility of the department or the colleges left alone. It should be the collective responsibility of all of us, all the teachers, all the associations, department, colleges. It is a collective job for all of us that we all are updated and we are progressing towards a direction which is meaningful for all of us, and the system becomes more student-centric, which was referred by Professor Ritu Sapraji in her address. All my colleagues sitting here from the department, Professor Amit Kumar Singh, the convener or the coordinator of this department college interface, he told me just now that 99 such kind of activities have been done in the last 3 years. This is the 99th one. So next time he will make a century out of this. And I have requested him to double the number. In the last meeting when we were there, so if you have done 98 or 100 in the last 3 years, so it should be at least 200 in the next 3 years. And more meaningful exercises should be done with all the stakeholders concerned. Professor Urvashi Sharma ji from the department who also addressed, so all the colleagues here who addressed to you. It's a very forward-looking team that we have in the Department of Commerce. So I'm very happy and delighted to be back in the department after serving for 3 years in Sri University, which was also a very wonderful tenure for me, Dr. Hemchand Jain. It was, every moment it was like being in heaven. And heaven to earth. पृथ्वी लोक में वापसी हो गई हमारी जो है. We are sure, sir, you can. So that's what I told in my first departmental council meeting, which I was sharing with some of my colleagues, that we should spread happiness, not only just work. While we work, the core of our own self, the main thing that we are, that is love, joy, bliss, happiness, should spread around us. So nothing we should do which demeans us or which puts us down or which puts us in the sadness kind of domain. So I told all my colleagues in my first meeting, if you don't want to do anything, just drop it. Don't do it. You choose to do only those things that you want to do. And they all happily made the shift whatever they wanted to and collectively decided what each one wants to do. So a round of applause to all my team, even those who are not present here today. And they took the challenge. Probably Commerce is the only department or the first department to give 4-year degree course, program, all the courses of the 4 years program by the deadline. That was April 30 of the University of Delhi. You must have seen Times of India Education. Times has covered this story
he has mentioned only about 2 departments there. One is Urdu and one is Commerce. So you should feel proud of it, that all of you collectively worked for that, and you have become the first department in the university to take lead in the UGCF 2022, which is based on LOCF, which is based on CBCS, which is based on New Education Policy 2020. So a new paradigm shift is taking place. New papers are being introduced, and for each one of them we will have to have a capacity building exercise. So Professor Amit is also office bearer in the ICA, and Professor Ritu is also associated. All other colleagues, ICA should also take charge of the remaining things which is not covered in accounting area. So all the new papers, we should have capacity building exercises, we should have discussions with them, what they want to do. You must have seen a big shift in the syllabus, that every paper has now practical exercises, which used to be considered a domain of only accounting or something like that. Numerical exercises were considered to be practical, although there is a difference between theory, practical and numerical. So what Professor Ritu was talking about, employability quotient to be enhanced. We fought a lot, if you remember, those who were in the meeting of the Faculty of Commerce and Business, when CBCS was being introduced, and there was UGC syllabus which came, and then we said, no, this is not which is going to increase the employability quotient of the students. So we introduced practical aspects of using, say, Tally in the financial accounting, filing of income tax return. I remember Dr. Hemchand Jain invited at that time Professor Vinod K. Singhania ji for doing those e-filing, e-return and all those things, exercises here under the banner of Indian Accounting Association. So all those things have been done in the past also, and we'll do more extensive exercise in the future. But we should remember that this is a system which should take into account the fact that it is to be student-centric. That is the first thing. Are they becoming more employable, or they are becoming entrepreneurs or not? If we are not adding any value to what they are today, when they join a program, when they pass out, if they don't become better human beings, better citizens of this world, a purpose is lost. The purpose of education is not only to come and get a degree. As teachers, our role is not only just to teach in the classroom and deliver the content which we are supposed to do, which we think we are supposed to do, but it is also our responsibility to make sure that he or she becomes a responsible citizen of this world. So it's not only accounting that you are teaching, it's also about human values that you are teaching. It's about character building that you are teaching. It's about humility that you are teaching. And that is also demonstrated in your actions. Punctuality that you should teach. All these aspects are to be demonstrated, only then students learn from it. Otherwise, if you yourself are not punctual, how you can teach punctuality? If you yourself are not honest, how you can teach honesty to them? If you are not democratic, how can you teach the values of democracy to them? So we have to run our systems like that. The governance should be such that they imbibe all those things through the process of passing through that teaching learning process and governance process. The time is today for Professor P.C. Tulsianji to speak, so I would not dwell much upon the topic of today, but I wanted to use this opportunity to speak to you. That department is for you, it is your department. You can come anytime, you can meet anytime, you can call anytime, you can interact anytime. We are for you. So don't hesitate in saying something, communicating something. Those who have given feedback for the LOCF and this UGCF 2022, they must have witnessed or observed that each of the feedbacks that we received, we have passed on to the concerned area chairs for that particular field. And even we have done meetings after it was passed through the Faculty of Commerce and Business, particularly in income tax. I remember there was some observation. We invited even Dr. Vinod K. Singhania ji at that time. You also come and say whatever you have to say in the meeting. Head was authorized to do whatever you can do after that, but I thought
If there is a confusion, let everybody sit together and there be a consensus on that. So I'm happy that wherever we have reached today in terms of UGC of 2022, it is with consensus of each one of us, and there is no dissent on that. And we are in the department, we have processed the application also. The agenda of having permanent faculty members is also on the top priority of the department. So you can share this information with your colleagues, those who are ad hoc, that department screening is done. It's on the portal now. They can check their marks and they can reply by 25th of June. After that, the selection process will start. So if there is any discrepancy in the marks, it is open right now. So you can communicate to them. It might not be in their notice. So we are doing in a time-bound manner whatever needs to be done in terms of UGCF, in terms of appointments, and whatever you think is the priority of the department, please tell us. You are the stakeholders, you are the partners in service. मैं सेवा मानता हूँ इसको जो, तो इस सेवा के कार्य में आप सब हमारे पार्टनर हैं, तो बताते रहें समय समय पे कि क्या करना है डिपार्टमेंट को, and we will evolve to greater and greater heights. Thank you very much. अभी प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यहाँ से कि पिछले 3 साल में 100 प्रोग्राम हुए हैं, तो इस साल हमें कम से कम 200 प्रोग्राम अगले 3 साल में करने हैं. तो 200 प्रोग्राम में काफ़ी बड़ा शेयर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का आना चाहिए. और we will try our best to provide best of the facilities for the programs. We have 4 seminar halls with us, fully equipped with all the facilities. Resources is not the limit. The only factor is we need to organize more capacity building programs, and we will be happy to organize all such programs. Thank you. Thank you, Singh sir, for your words of wisdom. For sure, anything done joyfully is effortless. On this note, we take a break, a tea break for 15 minutes. The tea is served outside the auditorium for all of you. Please enjoy the tea and come back for the workshop. Thank you. Dr. P.C. Tulsian, he is working in the Commerce Department of Ramjas College for more than 35 years. He has also served as an officiating principal at Ramjas College. Further, he has functioned as Director, Board of Studies, the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. He has been a resource person at more than 100 seminars and conferences attended by various students, teachers, and professionals. He has been extensively involved in the curriculum development for senior secondary classes, undergraduate courses, and professional courses. He has been conferred with various awards, including the Award for Exemplary Services contributed to the cause of profession by the Institute of Chartered Accountants of India and the Best Author Award by the Federation of Indian Publishers. Dr. Tulsian is an eminent and multidisciplinary academician who has authored more than 80 books in various disciplines with reputed national and international publishers. Through his innovative accounting treatments for the various complex financial transactions, which are even strictly followed by the accounting institutes of national importance, such as the Institute of Chartered Accountants. Good evening, friends. Our August gathering, I have delivered and addressed more than 100 seminars, conferences all over India. And today it's my privilege that I am here to meet you, the intelligent teachers of DU, the cream of DU. Okay? It's my immense pleasure. So,
keeping in mind all the factors, and since our department leaders are taking snacks in the principal room, during the meanwhile, we would like to have a very small quiz, okay, the link of which will be shared in your this WhatsApp group. And share announce, I think, everybody is on the link. Everybody is on the, because the link has been shared on your email, and most of the people have joined. And if any person is there who has not yet joined, requested to join, taking the link from Gmail or the mail which you have provided to the Google form. Please. Join everybody. Please tell me. Yes. Join? Yes, sir. Okay. It's a very, very small 10 minutes quiz. Okay? So start. Yes. Connectivity issue? Megha ji, solve this issue because it is not within my purview. DDUC स्टाफ आप लोग कनेक्ट करो DDUC स्टाफ। हाँ मैडम यहाँ आ जाओ मेघा जी। नहीं सर माइक है मेरे पास। हाँ भाई तो बोलो। वैसे भी आवाज इतनी है तो सही, लेकिन प्लीज हाँ थोड़ा जोर से लाउडली बोल दो ना। वाईफाई पासवर्ड दे रही है। Please connect to DDUC staff. I think it is going to be automatically connected. No. मैम पासवर्ड तो बता दो। यूजरनेम एंड पासवर्ड कह रहे हैं ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। ऑटो कनेक्ट। Please connected to DDUC 1 to 3. Username and password. It's DDU@123. The password is DDU@123. DDU@123 is the password. Network name. Network name. So let us worship our सरस्वती, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है। जो कुछ है इनकी माया है सभी पे, मुझ पर तो स्पेशली है, बाकी सभी पे भी है, ऐसा नहीं। और in addition to that, माँ सरस्वती, all our gurus from school to college, they have contributed a lot in our life. So, किसने, अगर आपने सुना हो आर एस निगम साहब, अजय सिंह के फादर प्रोफेसर बीपी सिंह, वाईपी सिंह, उससे ज्यादा आना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन है व्हाई, क्यों आना चाहिए सिलेबस से ज्यादा? रीजन बहुत सिंपल है। Unless until we know more than that, we cannot explain the topic, its practical utility, its application. We cannot relate that topic to the practical world. And we cannot answer the practical questions which are coming from a special class of students. In my class, 180 students are there at present. 180. In section A and section B also, both the sections I am taking. All students are not equal, you know it very well. हम सबको पढ़ाते हैं, सारे IAS नहीं बनते, सारे CA नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं। तो मैं कुछ ही की बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते उनको ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, forget about it. नहीं। During the COVID, crude oil crisis हुआ था, तो ऑनलाइन टीचिंग थी अपनी। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जयपुर से कि सर ये क्या चक्कर है, अब ये कहीं कोर्स से रिलेटेड है क्या अकाउंटिंग में?
नहीं, बट आई एक्सप्लेन। नेगेटिव प्राइसेस हो गए थे, नेगेटिव, और उसका सही रिवर्स हुआ है इस साल, रिवर्स क्रूड ऑयल का। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसका एनालिसिस करना हमारी ड्यूटी है, हमें पता होना चाहिए। जब तक हम कन्वर्जन नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, बिकॉज हमारा जो फील्ड है ना अकाउंटिंग, इट्स नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट ओनली, क्योंकि हम तो सेंटर पॉइंट है। वी रेगुलेट प्रोडक्शन, वी रेगुलेट फाइनेंस, वी रेगुलेट मार्केटिंग, एचआर, सारे फंक्शन हमारे अराउंड। क्यों? सब में रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। दैट्स व्हाई माय फर्स्ट सेंटेंस इन माय फर्स्ट बुक इज ऑलवेज देयर, wherever there are resources involved, accounting is involved. So my subject is universal, everywhere, under every circumstance. और जैसे जीवनानंद पॉलिसी होती है क्या, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हमारी अकाउंटिंग तो उसके बाद भी काम करती है क्या। आपके लेखा जोखा, कर्म का, पुण्य का, पाप का, चित्रगुप्त जी ये वो लोग में संभालते हैं, वो भी अकाउंटिंग है जिंदगी के बाद। तो ये डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। जितने पुण्य करते हैं वो क्रेडिट बैलेंस है, और जितने आपने उसमें इस्तेमाल कर लिए एटीएम से पैसा निकाल के हैं, बाकी बच के बैलेंस वो कैरिड ओवर टू नेक्स्ट जन्म है, जो लोग मानते हैं इसको। वहां पर फॉरवर्ड बैलेंस है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो अकाउंटिंग हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट थिंग से तो आप सब क्लियर है कि वी शुड नो मोर देन सिलेबस, मच मोर देन दैट। दूसरी बात, रितु सप्रा जी ने और A.K. सिंह साहब ने अभी कही थी कि भाई वी शुड नॉट बी लिमिटेड टू अकाउंटिंग और एनी सब्जेक्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ कवरिंग द सिलेबस ओनली। मतलब इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इंप्लॉयमेंट से कैसे रिलेटेड, मैं 2 एग्जांपल दूंगा शॉर्ट में, क्योंकि मेरे में मैटर बहुत है आपसे गुफ्तगू के लिए। आपका बच्चा जाता है इंटरव्यू में, कॉमर्स का ग्रेजुएट, उससे पूछा इंटरव्यू में, क्योंकि मैं भी बहुत कंपनीज में डायरेक्टर हूं और इंटरव्यू बोर्ड में हूं, तो वहां बीकॉम के बच्चे भी आते हैं, सीए के बच्चे भी आते हैं नौकरी के लिए। हम पूछते हैं उनसे, बेटे कि भाई हैव यू डन अकाउंटिंग for the measures to be taken in case of undercapitalization, overcapitalization? नो सर, वो तो कोर्स में नहीं था टॉपिक। बोनस शेयर और बोनस स्प्लिट में क्या बेनिफिशियल है? सर ये तो कोर्स में नहीं है, मैडम ने नहीं कराया, सर ने नहीं कराया। ये इंटरव्यू का जवाब बता रहा हूं प्रैक्टिकल। What are the effects of bonus shares? What are the effects of right shares? What are the effects of buyback? और buyback और issue of bonus में क्या डिफरेंस है implications में? Mind it, this type of question have never been asked in the past examination, though they are covered in the syllabus. But topic cover है तो उससे सारी implication उसकी cover है। क्योंकि क्वेश्चन पास में नहीं आता है तो कोई पेपर सेट नहीं करता है, सेट नहीं करता है तो बच्चा तैयारी नहीं करता है। लेकिन जब इंटरव्यू में जाता है तो ये बड़े आम क्वेश्चन है, राइट शेयर बोनस इशू के क्या डिफरेंस है और इफेक्ट्स क्या हैं इसके, वहां वो फेल हो जाता है। तो इसलिए हमें वो चीजों को बताना भी जरूरी है कि भाई जो रियल लाइफ से रिलेटेड है और है छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ा इसमें हमें कोई महाभारत की तरह या गीता की तरह 18 अध्याय नहीं लिखने, इसमें 701 श्लोक नहीं लिखने, बहुत छोटा सा मैटर। देखो मैं सब क्लियर कर दूंगा इसको। हम जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करते हैं वो सारा अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन करते हैं। और जो थोड़ा सा नैरो होकर सोचते हैं वो कहते हैं सर ये कंसेप्ट तो हमारा है ही नहीं। ये कंसेप्ट किसका है, किसका है विवाजी? फाइनेंस का। कहेंगे फाइनेंस का, फाइनेंस की एक्सपर्ट बैठी, बिल्कुल
फाइनेंस में करवाते हैं, वो फाइनेंस का है, आप कहाँ अकाउंटिंग में लिया है? मैंने कहा मैडम आप सिर्फ सिखाते हो थ्योरी, हम प्रैक्टिकल उसकी अकाउंटिंग हम बताएंगे आपको कि इस भंवर से ओवर कैपिटलाइजेशन से कैसे निकलें और अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन से कैसे निकले, वो हम बताएंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग के आदमी हैं और वही हमारा सिलेबस है। देखिए आप, mediocre teacher tells, good teacher explains, good teacher explains, the great teacher inspires। तो हमें इंस्पायर करना है बच्चों को। Is accounting for measures to be taken in case of over in syllabus? But obvious answer इसका no है, majority का। But majority every time does not prevail in knowledge field। ये आंसर इसका है यस, यही करते हैं। देखिए आप एक एक टॉपिक। अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्या है? वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, वी आर हैविंग लेस फंड देन रिक्वायरमेंट। ओवर कैपिटलाइजेशन, वी हैव मोर फंड देन रिक्वायरमेंट्स। और इसका भी एक कितना बढ़िया फार्मूला जो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, या मैडम पढ़ाती होगी क्योंकि ये तो बहुत स्कॉलर है विभा जी। तो इस सिचुएशन को भी कैसे इंडिकेट करें? हम अकाउंटिंग के आदमी हैं, कर सकते हैं इसको इंडिकेट, मतलब किसी भी कंसर्न में हम इसको पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता आप विभा जी कराते नहीं कराती फाइनेंस में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जितने भी बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं MBA के, स्टैनफोर्ड के और के IIM के, सब में कराते हैं ये। When current ratio is too low and capital turnover ratio is too high, it indicates the situation of undercapitalization. When current ratio is too high and capital turnover ratio is too low, that indicates overcapitalization. ये इंडिकेशन है उसका, अलार्मिंग है। अब इस सिचुएशन से कैसे निकले हैं? देखिए, रुपया कम है हमारे पास, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो, प्राइवेट इक्विटी के फंड ले लो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दो, IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसमें राइट शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, और रेडिमेड प्रेफरेंशियल इश्यू कर दो, डिबेंचर कर दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर दो। इस सीक्वेंस की कोई महत्व है या ऊपर नीचे कर सकते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं सर, मैडम हम मारवाड़ी हैं, हमें पैसा बचाना है, क्यों नहीं कर सकते? देखिए हमारा असूल क्या है, पहले अपने पैसे से काम चलाओ, ठीक है, फिर पब्लिक पे आओ, IPO, फिर पब्लिक जरूरत है पैसा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर दे दो, तो उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि जो डिविडेंड है एप्रोप्रिएशन है, दैट इज नॉट ए लायबिलिटी, दैट इज नॉट ए चार्ज विच इज टू बी गिवन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो लायबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जीरो। इसके बाद करेंगे रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ कहते हैं यार कुछ तो मिलना चाहिए यार, तुम्हारे से तो पहले मिलना चाहिए इक्विटी से, ओके प्रेफरेंस शेयर देते हैं, वो भी लायबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी एप्रोप्रिएशन है, लायबिलिटी नहीं। उसके बाद हम डिवेंचर पे आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे आएंगे। डिवेंचर का रेट कम होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे जनरली ज्यादा होता है। ये है इसलिए प्रॉपर सीक्वेंस। इस तरीके से रुपया जनरेट करेंगे हम इसमें, और ये सब अकाउंटिंग हमें करनी है, सिलेबस में है, ठीक है। अब आइए आप सब, रुपया बहुत है, रुपया बहुत कम, मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम है। जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो और करंट रेशियो टू हाई है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है करंट एसेट्स में और टर्नओवर हो नहीं रही, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, तो क्या करें? तो भैया बात यह है, सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट बर्डन कम करो। उसका इफेक्ट क्या है यहाँ? उसका इफेक्ट ये है कि हमारी जो EPS है वो डाउन है, EPS डाउन है। EPS डाउन क्यों है? EPS के दो होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होता है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब नेट प्रॉफिट कम होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं और शेयर उतनी है, तो इट विल ड्रॉप डाउन। तो
तो ड्रॉप आउट होता जाएगा हर साल, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है क्या करें, सबसे पहले आप देखिए मनीषा जी, आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे क्या, पहले बाहर का रुपया दो भाई, उसके दो फायदे हैं। एक तो जो हमारी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, और इंटरेस्ट की लायबिलिटी खत्म होने का मतलब हमारा प्रॉफिट टू दैट एक्सटेंट बढ़ जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। रीपेमेंट ऑफ, वो कैसे करेंगे, बाय परचेज इन द ओपन मार्केट कर लो, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर रिडम्पशन कर दो प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर का तीसरे नंबर पे करो, पहले इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स उनका रीपेमेंट, देन रिडीमेड प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, देन बायबैक। बायबैक से क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर विल गो डाउन और ईपीएस हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और पैसा हमारे भाई बायबैक के लिए प्रीमियम पे परचेज कर लेंगे, दे देंगे। एमलगमेशन, पैसा बहुत है, चल यार इस कंपनी को खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं इस कंपनी को। तो एमलगमेशन भी जब ही होता है और कैपिटलाइजेशन के केस में, कोई भूखा नंगा नहीं कर सकता। जिसमें पैसे की शॉर्टेज है वो कैसे एमलगमेशन करेगा भाई, क्या खरीदेगा, जिसमें पैसा होगा वही, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में ही एमलगमेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कैसे होगा बताओ इसका आंसर। कैपिटल कैसे करें, क्या राइट ऑफ करिए टैंजिबल जो इंटैंजिबल एसेट्स एक्यूमुलेटेड लॉस कैपिटल रिडक्शन, हमें तो लॉस आई नहीं, प्रॉफिट है। मैडम हमारे तो प्रॉफिट है, वो तो बुक एंट्री है, पैसा कहाँ गया उसमें। राइट ऑफ करने की एंट्री आप करते हो, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू ओवर वैल्यूड एसेट, तो उसमें पैसा कहाँ गया बाहर, तो फिर हमें तो रिफंड ही करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा होता है। सर रीस्ट्रक्चरिंग वो तो इंटरनली रिफंड होता है ना, व्हेन यू आर रिफंडिंग द एक्स्ट्रा कैपिटल। करेक्ट, कैपिटल रिडक्शन, इसमें हम कैपिटल रिडक्शन करेंगे ना, कैपिटल रिडक्शन में बहुत वेरिएशन आएंगे, उसमें सेक्शन 61 भी है, 66 भी है, 48 भी है और सेक्शन 230 भी है, उस पे आए 215 216 समय, ठीक है, बहुत बड़ा है। उसमें हम करेंगे सेक्शन 66 में रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, रुपया वापस करेंगे हम, वापस, हाँ रिफंड, करेक्ट, वो रिफंड करेंगे। अगर आप नॉमिनल वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, वो तो सैक्रिफाइस, वो अलग चीज है, सैक्रिफाइस, ये रिफंड है, ये रिफंड है, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। इसके बाद एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी, हमारे पास पैसा कम है, वी एक्वायर्ड 20% स्टेक इन द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट बन गए हम, थोड़ा पैसा है, जैसा है वैसा गुजारा करेंगे, तो उसमें एसोसिएट कंपनी बन गए और नजर मारते रहेंगे भाई क्या कंपनी में। हमने अपने जैसे तलाश करे, कोई एक बोला यार मेरे पास 30% शेयर है, ठीक है, 30 उसके पास है, 20 हमारे पास है, हम जॉइंट वेंचर बन गए, हम उस पर कंट्रोल करेंगे, किसमें, दूसरी कंपनी पे पैसा लगा दें। तीसरा, अगर हमारे पास मोर देन 50% पैसा है तो हम उसके मोर देन 50% में पैसा लगा देंगे शेयर्स में, और वो हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। तो सब्सिडरी भी जब भी बनेगी जब हमारे पास पैसा है। तो ये सब पैसे का खेल है, बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। फिर डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट होती है फंड से, पैसा है डिस्ट्रीब्यूट करो। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, आर और के का रिलेशन है कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपका थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इन द मार्केट, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इन दी सेकेंडरी मार्केट विल बी हायर ओनली व्हेन 100% पे आउट रेशियो इज देयर। ये उसका रूल है, गॉर्डन मॉडल में भी और वॉल्टर मॉडल में भी। एमएम की बात ना करो तो इरेलेवेंट मानता है, ठीक है। तो आपने देखा सिलेबस में ये चीजें हैं या नहीं हमारे, सिलेबस में ये चीजें हैं सारी, और यही चीज हमारे को अकाउंटिंग में करनी है। तो इनका रिलेशन वहां से है, ओवर और अंडर से, उस सिचुएशन की वजह से हमें इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ रही है। तो वी शुड नो दिस रैशनल।
चलिए यूनिट वाइज चलते हैं। क्या कवरेज है इसमें? इसमें कंपनी का मीनिंग, नेचर, प्राइवेट पब्लिक कंपनी, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल और मीनिंग, नेचर, क्लासेस ऑफ शेयर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, फिर इशू फॉर कैश, ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और प्रीमियम 52 और डिस्काउंट 53, और अंडर ओवर पार सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर, री इशू, डिस्क्लोजर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स और बुक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये आपका एक यूनिट 1 है। अब मैं सिर्फ MBE प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिस पे अभी तक आपकी शायद नजर ना गई हो, क्योंकि बाकी तो सब आप एक्सपर्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, सब जानते हैं, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जगह जो मैं समझता हूँ, हो सकता है आप में से उनको आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा सबको, ऐसा नहीं, लेकिन मैंने जो समझा अपने तरीके से उचित, वो मैं उसमें हाईलाइट करने की चेष्टा करूंगा। क्लासेस ऑफ शेयर हम पढ़ाते हैं, हाँ जी, क्लासेस ऑफ शेयर में क्या पढ़ाते हैं? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, वो होता नहीं, बातें अलग है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ये डेफिनेशन तो हम बताते हैं, इसकी इंप्लीकेशन डिविडेंड पे क्या होगी वो भी बताना जरूरी है, एंड दैट इज कवर्ड अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट नंबर 2, डिविडेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसमें डिविडेंड पेमेंट है, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें क्यूमुलेटिव के केस में, नॉन क्यूमुलेटिव के केस में, पार्टिसिपेटिंग के केस में, नॉन पार्टिसिपेटिंग के केस में, तो वी मस्ट नो दैट कैलकुलेशन एज वेल। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स टाइप्स है कुछ, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है, सेक्शन 86 1956 का था, कितने साल पहले आया, लेकिन आज तक हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा उस पे कि भाई इक्विटी शेयर के टाइप क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। कंसेप्ट है DVRs की। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा, सब फेल वहां इंटरव्यू में, बीकॉम पढ़े हुए, बोले सर DVR क्या होता है? VCR तो सुना है, DVR नहीं सुना, DVD भी सुना है। अरे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भाई, आज इन 2008 टाटा was the first company in India which launched DVR with 1/10 voting power and 5% more dividend. 1/10 वोटिंग पावर एक होती है, एक शेयर पे एक, उसने कहा मैं 1/10 दूंगा आपको पावर। यस, 1/10 मतलब 10 शेयर के बराबर जो होती है वो, उसके एक 1/10 देंगे, और डिविडेंड दूंगा मैं 5% ज्यादा। 5% ज्यादा का मतलब जो बाकियों को मिलेगा उससे 5% ज्यादा। तो DVR की अकाउंटिंग भी हमें आनी चाहिए। आज के जमाने जो कितने साल पहले 86 एक्शन आ चुका पुराने एक्ट में, 20-25 साल पहले, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग। बच्चा इंटरव्यू में फेल हो जाता है क्योंकि उसको आता नहीं, तो इसलिए दोनों ने वर्ड इस्तेमाल किया कि इम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चे फेल ना हो। वो ये नहीं पूछेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में नंबर कितने आए, नहीं, वो कंसेप्ट पूछेगा इंटरव्यू बोर्ड में। वही इससे कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट तो आना चाहिए आपको। क्या बस यहाँ तक अकाउंटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना उसका, एक बार बच्चे को कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग नहीं, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? अरे मैंने इस कंपनी ने DVR इशू करे, उसकी एंट्री करो, तो DVR से करेंगे ना। मतलब आप एक अकाउंटिंग एंट्री करें इक्विटी शेयर से, अब ये कहूंगी वे डिफरेंशियल राइट DVR। आप देखो स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओ, DVR वहां कोड होता है। देखिए पॉपुलैरिटी से नहीं गाते हम लोग कहते हैं कि जब कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस अंडर द कंपनी एक्ट है, वी शुड नो इट। कंसेप्ट भी जानना चाहिए और इसकी अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। अकाउंटिंग में ये मैडम, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन की टाइम कितना है नहीं है, देखो हम भी डिस्कस करें, हम भी आपके जैसे ही हैं,
हमें भी कोई सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही, जितनी आपको मिल रही है उतनी हम मिल रही है। जो हम डिस्कस कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। चलिए, इसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट which a company can have at a particular point of time. Maximum limit is 74%. 74%. मैडम मेन क्लिक करने में के बजाय इसको ध्यान से सुनो। सर सुन तो लिया, आगे स्टूडेंट्स को भी बताना, आधा भूल जाएंगे। शेयर कर बेटर है लिख के रख। प्लीज सर शेयर कर दोगे? शेयर करेंगे, आप अपनी पीपीटी शेयर कर देंगे। देखते प्लीज, अब सुनिए मेरी बात। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि रेज द कैपिटल विदाउट लूजिंग द कंट्रोल ओवर द कंपनी, विदाउट डाइल्यूटिंग द कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर अगर नॉर्मल इश्यू करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट होता है। ठीक है, कैपिटल तो आती है, डीबीआर से क्या होता है, पैसा आता है और कंट्रोल डाइल्यूट टू दैट एक्सटेंट नहीं होता। सर एक बात पूछनी थी छोटी सी, सर ये 74 को भी कोई जस्टिफिकेशन है मैक्सिमम? नहीं, ये लॉ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। अच्छा ये बताओ, एक मिनट आपकी इनकम कितनी एग्जम्प्ट है? इनकम इनकम टैक्स में? सर मुझे नहीं आता है। 2,50,000 2,50,000 2,49,999 क्यों नहीं है? 2,50,000 एक क्यों नहीं? जवाब दे दो। है जवाब? तो इसलिए इस बारे में क्वेश्चन ना पूछा करो, ये लॉ की चीजें हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। कैन प्रेफरेंस शेयर बी इशूड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? यस, ये इक्विटी शेयर का टाइप है, प्रेफरेंस शेयर का नहीं है। नो, सेक्शन 43। कैन एग्जिस्टिंग शेयर्स विद वोटिंग राइट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट और वाइस वर्सा? एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं जिसके पास फुल वोटिंग राइट है, क्या नो नहीं कर सकते। अब आता है इसी यूनिट में बोनस शेयर्स। बोनस शेयर में इफेक्ट्स ऑफ बोनस शेयर्स, 3 सोर्सेज, कंडीशंस, सेबी गाइडलाइन, हाउ टू कैलकुलेट बोनस शेयर रेशियो और जर्नल एंट्रीज। ये तो बड़ा नॉर्मल टॉपिक है, आप सब कराते ही हैं। माय क्वेश्चन इज, कैन ए कंपनी कन्वर्ट पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप shares by way of bonus without asking them to pay anything? Clear? बताओ पंकज। सर बाय वे ऑफ बोनस कॉल। या तो मैं हो सकता है, जब सारा हाउस कह रहा है तो हो सकता है, लेकिन मेरे को तो डाउट है। पार्टी पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड एट ऑल, दे हैव टू बी मेड फर्स्ट फुली पेड अप बाय कॉलिंग ए बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग एंड टू मेक ए कॉल। पहले कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, और बाय मेकिंग देम फुली पेड अप ओनली देन कैन यू इशू बोनस शेयर्स। कन्वर्ट कर सकती है पार्टिसिपेट शेयर को बाय वे ऑफ बोनस, बाय गिविंग देम बाय कैपिटलाइजिंग 2 days of bonus. Yes, it is not bonus share. क्वेश्चन सेम गलत हुआ। ये क्वेश्चन है गलत है। आप बोनस शेयर करते तो हम लिखते लो। अच्छा, तो मेरे को ऐसा है, हर एक चीज रिलेटेड है सेक्शन से, मुझे सेक्शन बता दो। और ये आपके एक्सपर्ट बैठी है बीच में, कंपनी जाती है, सेक्शन बता दो, खत्म काम। अभी गूगल पे पंकज सब कर। देखो ये बात बिल्कुल गलत है, आई हेट दिस थिंग। आप कहते हो हाँ सेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, जिसका सेक्शन से रिलेशन नहीं हो अकाउंटिंग पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। देखो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सुनो सेक्शन 240, 241, 63, 48, 43, 55, 68, 63 ये आपके जब तक टिप्स पे नहीं होंगे, जब तक आप कमांड नहीं कर सकते अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पे उस कंसर्न सेक्शन पे मास्टरी होना मस्ट है।
मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन जब भी अराइज हुआ है कि जब सेक्शन का रेफरेंस नहीं है, फिर भी मैं अपनी स्लाइड को वापस ले लूंगा, अभी नहीं लूंगा, जब आप मुझे सेक्शन कोट कर देंगे, तब तक के लिए एविडेंस में रखो। क्लियर? मैंने तो सेक्शन बता दिया। सेक्शन 63(2) कहता है फर्स्ट दे आर टू बी मेड फुल्ली पेड अप। और ये आपको बता दूं, ये सेक्शन जब बना उसमें ये क्लोज नहीं थी पहले, सेक्शन 2013 में। उससे पहले ये सेबी गाइडलाइन का पार्ट थी, जो बहुत पहले इशू हुई थी। सेबी गाइडलाइन बहुत पुरानी है, वही चल रही है, उसमें ये सेंटेंस था। लेकिन सेक्शन 63 में, मतलब वो तो नया ही आया 2013 में, उसमें नहीं था। जब से इसमें आ गया तो वो जो आप कह रहे हैं वो उस बात पे पानी फिर गया, अब हो ही नहीं सकता। फर्स्ट यू विल हैव टू मेक ए कॉल और देन पुराने क्लॉथ में ऐसे होता था, पुराने में होता था, नए में नहीं होता। कॉल करके बिना कुछ उनसे लिए पुराने में होता था, बिना कुछ लिए, क्योंकि वो दरबार में हम जवाई लग रहा है हमारा। को यूज कर रहे हैं ना, उनको नहीं, ऐसा है वो हमारे जमाई लग रहे हैं क्या? या कंट्रोल नहीं करना है, फ्री में नहीं देंगे। पहले फुल्ली पेड अप कर लो, फिर रेशो 2:3, 2:1 जो कहोगे दे देंगे। हाँ, कैसे कन्वर्ट क्या लगेगा? यस, कॉल करके कैश आएगा। हाँ जी, नहीं हो सकती, वो पुरानी बात कर रहे हो आप। सर यही मतलब है। जब ये क्लोज नहीं थी, प्लीज समझ लीजिए, ये क्लोज नहीं थी इस सेक्शन में, नए एक्ट में, ठीक है, तब ये करते थे जो आप बता रहे हैं। प्लीज देखिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बुक में क्या हो रहा है, ये औरों की बुक में क्या लिखा है, इस इश्यू को ना उठाएं। क्वेश्चन की स्लाइड हाँ, इसको ना उठाएं। हम यहाँ जनरल डिस्कशन, मैं अपनी किताब का हवाला नहीं देता कभी। मैंने कभी व्हाट्सएप पे पोस्ट किया आपको अपनी किताब का? कभी। मैंने पब्लिशर को मना कर रखा, कहीं मेरी किताब गलती से मत बांट जाइए। तो सर ये जो इस क्वेश्चन मैं नहीं बांटता ना, मैं अपनी किताब का जिक्र करूंगा, ना रेकमेंड करूंगा, ना प्रमोट करता। तो मेरे पास पैसा बहुत है भगवान की दया से, मुझे पैसे की दरकार ही नहीं। हाँ, तो सर ये कन्वर्जन फिर होगा कैसे, मतलब किस फॉर्म में होगा? जो पार्टली अरे सीधी यार मैडम, एक मिनट, अब ये पढ़ो, तो मैंने पढ़ लिया। बस यही है, एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। My question: there are two categories of preference rights. Okay, one is fully. ये अभी एक मिनट, आप यहाँ कहाँ से आ गए? प्रबंध शेयर कह रहे हो, इक्विटी शेयर है। नहीं, equity only. हाँ। One is partially paid up, called up paid up, and one is fully called up paid up. Now there is a bonus. For doing. बोनस शीट तो लिखेगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखेगा क्या? The board decided to make a call on the partly paid up share to make them fully paid up and then declared bonus in the ratio of 2:1. ये लिखेगा, दिस इज द लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज पिछले 5 अटेम्प्ट में जहां भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं, उसमें यही लैंग्वेज मिलेगी CMA और प्रोफेशनल और एग्जाम में। इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। So that clause has been withdrawn. Yes. विड्रॉ नहीं, पहले कंपनी एक्ट में नहीं था ये एक्ट, ये क्लोज, तो इसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन ये सेबी में थी गाइडलाइन में, क्या था? यही कि मेक देम फुली पेड अप। नहीं, फुली पेड अप तो शुरू से है। मैं ये पूछ रही हूँ, फुली पेड अप बनाने के लिए आप उनको कैपिटल प्रॉफिट्स यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप मेरी बात सुन लो एक मिनट में। स्टेप मेथड ट्रीटमेंट कैसे करें? एक कैटेगरी ने पैसा नहीं दिया, जैसे मनीषा कह रही है, और एक फुली पेड अप है, ले बेटा तेरे 40 रुपए नहीं आए, 40 रुपए ले ले मेरे से, अब 1:1 का बोनस ले ले, और 1:1 का ले ले दूसरे वाला, तो दूसरा वाला बेवकूफ है क्या? मनीषा दो की कैटेगरी कह रही है। Partly paid को fully भी convert करेंगे by issue of bonus and by using the capital reserves. Hold on. And when they are fully paid up, to them also we are issuing fully paid bonus shares. So both the parties are being satisfied equally and in the same ratio. I did a question also where in the same ratio they were. अरे मैडम, सब ये पुराने क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार, नए क्वेश्चन सुनो। इन्फॉर्मेशन बुक्स में दे रहे हो और हम गलत पढ़ रहे तो हम आप उसका मैं क्या करूं मैडम? तो नंबर कट जाएंगे ना,
तो उसमें मेरा रोल बताओ ना, आप मेरा डिफॉल्ट बताओ। मतलब नहीं, मैं जो लेटेस्ट चीज है वो ना बताऊं आपको? नहीं सर, तो छोड़ा, मेरी बुक की तो बात ही मत करो, समझो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लीज आप टॉपिक को डाइवर्ट ना करें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पे या पर्टिकुलर बुक पे, प्लीज। टू एनहांस द नॉलेज इट इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू मेक यू अवेयर ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, बस प्लीज। आपने जो मनीषा ने पुराने क्वेश्चन करे वो एलिमिनेट करते हैं। सर जो आप स्टेप बदलनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका मैं आर्गुमेंट दे रही हूँ। आर्गुमेंट करो मैं ना, पार्टली पहले मैं कन्वर्ट कर दो बाय मेकिंग कॉल, बस। ज्यादा क्यों आर्गुमेंट करते हो, बेसलेस। हाँ, वो पुरानी जो नॉलेज है उसको ऑब्सोल्यूट करने में जरा दिक्कत होती है, बस यही फर्क है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हैं कि पुरानी नॉलेज वो कितनी पुरानी है, मतलब हम कब से अपडेट नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इस बात का जवाब आपको मिला नहीं अभी? वो DVR 1956 के एक्ट में था, 1956 के एक्ट में था, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1988 DVR का। लेकिन बस ठीक है, समझ जाओ। आप ये तो देखिए, ये तो कुछ पॉइंट हम 1 घंटे में कितना कवर कर पाएंगे, क्या हमें आप एक रिलायबल सोर्स बता सकते हैं जहाँ से हम हाँ, इसके बाद करेंगे। अभी पहले मेरे पास स्लाइड बहुत है और कंप्लीट कर लेंगे प्लीज। कैन ए कंपनी इश्यू फुल, देखो आप समझो, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग अलग स्टाइल है। आप मेरे क्वेश्चन मैंने पोज करे हैं, उसका आंसर देते जाइए, कैसे भी, कोई वैसा नहीं है, और मैं उसका आंसर आपको ऑथेंटिकली देता जाऊंगा। क्योंकि बिना क्वेश्चन पोज करे उसका आंसर कैसे दूं? क्रेडिटर्स को कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 63(1) में ओनली मेंबर्स, ओनली क्रेडिटर्स को नहीं। क्लियर? सिर्फ मेंबर्स। अब देखिए, आर द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स व्हिच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द डेट ऑफ द बोनस आल्सो एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर इन द सेम रेशियो एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स? आंसर आया नो। क्लियर? नो। ठीक है, मेरा आंसर सुन लीजिए। मेरा आंसर कॉन्ट्ररी होता है। यस, बिकॉज नो कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स unless the similar benefit is extended to the convertible, whether fully or partially, debenture holders for the convertible portion of that debenture. जब तक उसको आप अबेंस में नहीं रखेंगे तब तक नहीं कर सकते। क्यों? ये है सेबी गाइडलाइन में, सेबी गाइडलाइन कोर्स में है लेकिन पढ़ता नहीं कोई। बट सर वो तो हमने फ्यूचर डेट के कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोविजन रखना है, बट जिस डेट में वो बोनस शेयर इशू है उस डेट को तो नहीं देते ना, इसलिए उस डेट कोई, मैडम इंटाइटलमेंट पूछा है, इंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट तो है और हम प्रोविजन भी करना चाहिए। एंट्री भी करेंगे। अब मैं एंट्री सिखाऊंगा आपको जो किसी किताब में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया एंट्री भी सुनाऊंगा आपको। आप देखते जाइए पेशेंस के साथ, अगर मेरी सुनेंगे बात तो मैं नई चीज आपको बताऊंगा, वेदर यू अप्रिशिएट और नॉट। डिबेंचर होल्डर जो कन्वर्टेबल हो सकते हैं दो टाइप के, फुली कन्वर्टेबल 100 का 100 कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, पीसीडी जो 100 का 60% 50% जो भी जितना पोर्शन कन्वर्टेबल है उसको इक्विटी मानो और उसी रेशो में बोनस निकालो जो आप फुल्ली पेड को दे रहे हैं। सेम रेशो में, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, उसी रेशो में उसका अमाउंट निकालो और उसकी जनरल एंट्री पास करो। जैसे आप करते हैं, आपने फ्री रिजर्व जो भी डेबिट करते हैं, CRR कैपिटल कंजम्पशन वगैरह जो भी है वो डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहां करेंगे टू बोनस टू पीसीडी और एनसीडी। ये एंट्री अभी पास करनी है आपको। अब दूसरा ये मैडम सुनो तो सही, मेरे वो आगे नहीं शुरू वाली बात, आगे का क्वेश्चन जानना है, भविष्य जानने की चेष्टा करते। अरे मैं तो सुनो सही। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो इशू कर देंगे शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोनस टू पीसीडी और एनसीडी अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, क्यों? वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। यही पूछ रहे थे ना, यही बता रहा हूँ। टू वो करेंगे एंट्री जब उनका कन्वर्जन हो जाएगा तब करें। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, अगर वो जब तक कन्वर्जन उनका जो पीरियड है उसके बीच में कोई बोनस इशू आएगा, they will be entitled to that. Definitely 110%. Nobody can stop it. और ये आज का प्रोविजन नहीं है, बहुत पुराना प्रोविजन है, 15 साल पुराना।
हाँ करेंगे सर। अरे एंट्री हो गई नहीं सर, तो जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते तब कन्वर्ट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग चला जाएगा, वो चला जाएगा ना। वो हम उसमें दिखाएंगे शेयर कैपिटल के साथ ही। वो लायबिलिटीज में जाएगा। अच्छा आप बताओ किस में आना चाहिए, बताओ। आपने तो एंट्री बोल दी, हमने मान लिया। नहीं आप बताओ ना किस में आना चाहिए। बोनस शेयर जब आपने इशू नहीं किए, हाँ शेयर कैपिटल में आने का मतलब क्या है? कल को आप डिविडेंड दे दोगे उनको? क्या? कल को आपको डिविडेंड दे दोगे ना? तो ठीक है दे लोगे उनको आप। ऐसा है प्लीज, मैं क्वारी बाद में लूंगा, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ क्योंकि फिर डाइवर्ट हो जाता है इशू। वो हर एक मन की बात है। ये देखिए साहब, ये एंट्री करिए बोनस टू फॉर कन्वर्टेबल पोर्शन। Is a person who buys shares next day after the date of announcement of bonus by the board of directors entitled to bonus? No. मैंने ये तो बोला कि जो हमें मनीषा जी क्लियर है? Existing shareholders होते हैं After the date of announcement of bonus by the board? No. अब मेरा आंसर आप जानते हैं। मैडम एंटाइटल है वो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अनाउंस करता है डेट बोनस की, उसके बाद 2 डेट आती हैं। नंबर 1 एक्स बोनस डेट और उसके बाद आती है रिपोर्ट डेट। तो अगर एक्स बोनस डेट से पहले वो ले लिया नेचुरली नेक्स्ट डे, क्योंकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अनाउंसमेंट की डेट है तो उसके अगले दिन तो हो नहीं सकती एक्स बोनस डेट, कभी होती नहीं है। अगले दिन उसने ले लिया तो ही इज एंटाइटल। पढ़ लीजिए। मैडम रिकॉर्ड डेट से काम नहीं चलता, एक्स बोनस डेट भी बताया करो। पहले एक्स बोनस डेट होती है फिर रिकॉर्ड डेट होती है। एक्स बोनस डेट का मतलब तेरे को खरीदना है, बोनस लेना है, पहले ले ले। हाँ जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है मार्केट में, लेकिन उसमें खोल के देखना पड़ता है कंपनी की साइट moneycontrol.com। सर ये क्या? अरे भाई साहब मैंने आर्टिकल लिखे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पे, मुझे ना बताओ। ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, डेट ऑफ अनाउंसमेंट हो चुका है, फिर कहां से होगा इनसाइडर ट्रेडिंग? पब्लिश इंफॉर्मेशन। अरे भाई नेक्स्ट डे लिया हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया कि हम 2:1 का बोनस देने जा रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, और अगले दिन हमने खरीद लिया। कहां से इनसाइडर ट्रेडिंग है? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, पब्लिश इंफॉर्मेशन है। महाराज पूरी किताब लिखी हुई है इस पे, चिंता नहीं करो आप। इनसाइडर ट्रेडिंग कॉर्पोरेट इश्यूज सब पे शेयर प्राइस नीचे खुलेगा अगले दिन। और ये उस पे आएंगे, बात करेंगे अभी कि बोनस वाले शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। क्योंकि इस बार मैंने गूगल फॉर्म पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगी थी कि कोई क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं वो मांगा, कोई टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं, मेरे को बड़ा बढ़िया लगा। कुछ लोगों ने पूछा जी किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, पैसा कैसे कमाना चाहिए, वही पूछा है। तो मैंने उसका भी जुगाड़ करा है, क्योंकि हमारा अगर ये जहाँ का मतलब स्टूडेंट कहूँगा सो कॉल्ड, और वो पैसा ना कमाए, हमारे लेक्चर के बाद भी फायदा क्या है? ठीक है ना? आई हैव टू मेक यू मल्टी बिलियनियर। और मैं बता रहा हूं आपको, बात नोट कर लेना, नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया में मैक्सिमम बिलियनर होंगे, आज के बजाय 8 टाइम्स। ये मेरी स्टडी नहीं है, हेल्थ की स्टडी है, जो वर्ल्ड का इंटेलिजेंट वेल्थ क्रिएटर है। कल ही आई है उसकी स्टडी। विच इज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर्स? देखो ये क्वेश्चन हम रेगुलरली पूछते हैं, कहाँ? इंटरव्यू में। बड़ा सिंपल चीज है, बोनस शेयर भैया या शेयर स्प्लिट, विच इज बेनिफिशियल? सिंपली इसके बताने के बोनस शेयर इज कैपिटलाइजेशन, स्प्लिट सब डिवीजन, हो गया चैप्टर। ऐसा नहीं होता। मेरे स्टूडेंट बहुत पैसा कमाते हैं, एट प्रेजेंट 180 में 5-6 खूब आईपीओ लगा रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। हाँ। सिलेबस की बात ना करना, पेपर की बात ना करना। तो पैसा कमाने की बात हो रही है। हाँ पैसा कमा दो, पैसा भी कोई दिक्कत नहीं।
राकेश झुंझुनवाला जिंदाबाद, वी आर झुंझुनवाला, डोंट वरी, पैसा में कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मी की बहुत कृपा है। हाँ जी बताया नहीं आंसर इसका? सर क्या फायदा तो बताएंगे आप? अरे देखो गीता जी, इसको नेगेटिव मत लो, आप पॉजिटिव लो, ये इंटरैक्टिव सेशन है, इसमें मजा ऐसे ही आता है। अब बोले क्या जैसे 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 पॉलिटिकल लीडर आते हैं कोई ये कर गए तो मजा आएगा आपको? ये बताओ, जब तक मनीषा जी बताओ, जब तक इंटरैक्टिव सेशन नहीं होगा क्या मजा आएगा? हाँ मेरा तो यही स्टाइल है, आप मेरी क्लास में चले जाओ कहीं, पूछ लो विशाल पांडे से, पूछ लो, कई लोग आए हुए हैं यहाँ, मेरा यही स्टाइल है। सब चेंज तो कर लो, 25 से ही 25 चेंज कर लेता तो सीए करता क्या? सीए करा, सीएस करा, डायरेक्टर बना, पीएचडी बना, समझे? ये भी डायरेक्टर इन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट बेंचर था मेरा ये। क्या बात है, क्या बात है। आज ये बोनस शेयर स्प्लिट का एक जवाब दे दो बस, गलत सही की बात देखो, गलत सही की बात ना सोचा करो, इंटरैक्टिव में मजा आता है। भाई एक संडे छोड़ दे दो, इसके बाद क्यों? फिर हर बोनस से स्प्लिट में आपका अपना शेयर ही तो स्प्लिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ कैसे नहीं होगी? फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही। सर शेयर स्प्लिट होगा, शेयर स्प्लिट होगा, हाँ शेयर से स्प्लिट होगा, ईपीएस से बढ़ जाएगी मार्केट में, दोनों की ईपीएस में फर्क पड़ेगा, बोनस में कम रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी, ऐसा कुछ। हाँ बोनस शेयर में ईपीएस कम हो जाएगा, I think different situation में different number of share बढ़ जाएगा for the company. बोनस शेयर में तो मिलेगा। चलो ऐसा है, इसका जवाब इसके बाद कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इम्प्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर दोनों में इंक्रीज है। बढ़ जाएगा। अच्छा दोनों कॉर्पोरेट एक्शन है, किस लिए ले जाते हैं? टू प्रिवेंट द मार्केट प्राइस फ्रॉम राइजिंग टू हाई, मतलब बहुत जबरदस्त प्राइस बढ़ रहा हो तो क्या होता है उसका, उसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट में? मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं रहता शेयर बाई करना है, तो अगर शेयर को स्प्लिट कर देते हैं या बोनस दे देते हैं तो प्राइस डाउन आ जाता है, डाउन आने से उसकी रीच में आ जाता है और बाई कर सकता है। जब रिटेल इन्वेस्टर घुस जाता है किसी भी शेयर में वो उसके बल्ले बल्ले, ये रैशनल है, आपको बता दूं 14 से 15,000 रुपए तक का आपको हम अलॉटमेंट करते हैं, किसमें? आईपीओ में। और किस जमाने में किसी के 10 लाख के आ गए, किसी 5 लाख आ गए, खत्म हो गया ना, 14-15,000 के देते हैं, किस लिए? बहुत सारे शेयर होल्डर बन गए, एक तो रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि कोई कश्मीर में बैठा है, कोई कन्याकुमारी में बैठा है, कोई हो नहीं सकता इतना, मस्त है। तो रिटेल इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करवाना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट पे पकड़ रखने के लिए। तो मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और ईपीएस ये तीनों तो डाउन हो जाएंगे दोनों केस में, ठीक है। और वैल्यू ऑफ कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है एक पैसे का भी। क्यों नहीं है? अरे भाई वैल्यू होती है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस से, दोनों मिला के बिना शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उधर शेयर स्प्लिट में हमने एक शेयर के 5 शेयर कर दिए, फेस वैल्यू कम हो गई, तो शेयर होल्डर फंड तो उतने रहे, वैल्यू में क्या फर्क पड़ा? बोनस में एक के 2 में प्रॉफिट को उधर से कर दिया, शेयर होल्डर फंड सेम रहे। जब दोनों सिचुएशन में बैलेंस सेम रहा शेयर होल्डर फंड का, तो फिर वैल्यू कहां से बढ़ी और कहां से घटी? सेम। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इफ आई एम अ शेयर होल्डर, मेरे लिए तो बोनस शेयर बेटर होंगे ना, मुझे तो मिला ना। प्लीज हाँ बताओ। मुझे तो मिला। In the presence of efficient market hypothesis, all these things are true. If investors are not rational, then they can think anything. But in that case, arbitrage will come into importance. वो मैं उस पे आऊंगा अभी। Is right. ऐसा है एफिशिएंट मार्केट में जो कि थोड़े नियर बाई है यूएस में, वहां भी नहीं है परफेक्ट, वहां भी नहीं है। इंडिया में तो टोटली इनएफिशिएंट है, यहाँ तो पीएम मोदी को छींक आई नहीं, मार्केट धड़ा, निर्मला सीतारमण को बुखार हुआ नहीं, धड़ा, यहाँ तो ऐसे चलता है। नारायण मूर्ति को कुछ हुआ नहीं, इन्फोसिस डाउन। मुकेश अंबानी ने लीवर का ऑपरेशन कराया तो पता है आपको हालत क्या हो गई शेयर की। और आप सीक्रेट बात भी बताया था नीता अंबानी और इसकी, शेयर खरीद लो और वैल्यू एडिशन होगा इसमें। अब ये अपनी बीमारी को देखते हुए अपनी जो बेटी और
भाऊ है और आकाश है, सब में डीमर्जर करने जा रहे हैं। डीमर्जर से हमेशा वैल्यूएशन का फायदा होता है शेयर मार्केट में, याद रखना। ये होगा चाहे 6 महीने में हो चाहे 5 महीने, 1 साल। बिल्कुल आईटीसी में भी फायदा होगा क्योंकि ये अपने होटल बिजनेस अलग कर रहा है। ठीक है जी, चलिए तो कोई बात नहीं खास नहीं, वैसे बता देता हूँ। 60,000 इक्विटी शेयर हैं 6 लाख के, क्या हो गया टाइम, 6 लाख के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम है 7 लाख और 3 लाख मिला के 13 लाख। कैपिटल रिजर्व है 3 लाख। तो रेशो बोनस शेयर निकालनी है। बोनस शेयर की एंट्री पूछते हैं बार बार। अरे भाई असली तो चीज है रेशो पूछो, रेशो क्या है, कितनी रेशो दे सकते हैं हम, किस रेशो में मैक्सिमम बोनस अगर हमें देना है अंडर द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम बोनस रेशियो। बताओ पंकज। इतना टाइम नहीं है भाई, तो मिनट से पहले का क्वेश्चन है। सर 1:1। चलिए देखो फंडा बड़ा क्लियर हो ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। अरे 13 लाख का है ना, 13 लाख में से वो सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कर दो जो एलिजिबल नहीं है कैपिटलाइजेशन के। कैसा 7 लाख रुपया कैश में नहीं है, 3 लाख रुपया कैश में नहीं है, गया 10, बचा कितना 3, और नीचे है 1 4 लाख 4 लाख इस 6 लाख 2:3 दैट्स ऑल। फिर 15 सेकंड मिलने लगे क्वेश्चन। अगर फंडा क्लियर है तो माय डियर उसमें 10-15 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। Only security premium collected in cash and capital reserve collected in cash. पर सर यहाँ पे ये क्लियर रहता है कि जो नीचे कैपिटल रिजर्व है वो बाकी नॉन कैश। सर कैपिटल प्रॉफिट्स कलेक्टेड इन कैश इज ओके। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कैश का तो हमने क्लॉज देखा है। अब देखिए सेबी गाइडलाइन ये तो क्लियर है सर, लिखा हुआ है। सर जो नीचे कैपिटल रिजर्व लिखा था ना आपने, उसमें लिखा था 1 लाख कलेक्टेड बाय सेल ऑफ मशीनरी। हाँ बाकी 2 लाख फिर वो थोड़ा सा वेग हो गया। वेग हो गया ना। हाँ तो वेग हो गया तो हमें पता ही नहीं, तो हम उसको असम्पशन भी ले सकते हैं कि सर वो भी कैश एजेंसी में नहीं, वो उसने क्लियर दिया हुआ है। जो कैश में रिलाइज हुआ है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, उसको हम लेते हैं दैट माइट हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। ठीक है ना, ये होता है। क्लियर मैडम, ये बता दिया मैंने कहाँ लिखा है सेबी गाइडलाइन में। हाउ टू मेंटेन मिनिमम रिडक्शन। मैडम मैं कई चीजें ऐसे भी बताना चाह रहा हूं कि लोग थियोरेटिकल एकेडमिशियन ने, थियोरेटिकल पेपर सेटर ने, थियोरेटिकल बुक राइटर ने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है करके दिमाग खराब टीचर्स का भी कर रखा है और स्टूडेंट का भी कर रखा है। बी रैशनल, वी आर प्रूडेंट अकाउंटेंट, समझदार। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया और कैपिटलाइजेशन में भाई सबसे पहले जब ब्याज लग रहा हो ना उसको कम करो। आप तो रुपए पढ़ाओ, अरे मैंने तो बाईबैक कर लिया जी, क्वेश्चन में लिखा थोड़ी है, मैं तो बाईबैक कर लिया। और भाई एज ए प्रूडेंट पर्सन तो तुमने वो फंड वापस करने चाहिए जिन पे ब्याज लग रहा है, जिन पे डिविडेंड लग रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर का बाईबैक का नंबर आएगा। तो समझदारी की अकाउंटिंग इसी में है। और ये जो है हाउ टू मेंटेन, लोग इसमें तलाश करते हैं क्वेश्चन में लिखा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे भाई समझदारी इसी में है कि आप सबसे पहले CRR को इस्तेमाल करें। क्वेश्चन में लिखा हो तो, नहीं लिखा हो तो, लेकिन लोग क्वेश्चन में लिखवाना चाहते हैं। ये पहले मेरे जमाने में लिखा होता था क्वेश्चंस में, है वो ऐसी परंपरा बन गई कि लोग पेपर सेटर से एक्सपेक्ट करते हैं वो लिखे, तब हम उसको फॉलो करें, नहीं तो अपनी मर्जी से जो मर्जी। तो कैपिटल रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश,
कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L। ठीक है, ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं जी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे। ये नया टॉपिक है जो पहली बार इस बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। बीकॉम पास में भी और बीकॉम ऑनर्स में भी। पहले होता था ये। हाँ, पास में। बहुत आसान टॉपिक है, जब तक ना करो जब तक ये पहाड़ है, करने के बाद बहुत आसान है। मतलब 5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगेंगे करने में, प्रोवाइडेड योर फंडा इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल सर एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन कवर भी नहीं है बुक्स में, बहुत कम क्वेश्चन कवर। मैं एक में क्लियर करा दूंगा। अरे इस दूसरे क्वेश्चन को करवाना मत क्लास में। मैं अपनी क्लास में कितने क्वेश्चन कराता हूं पंकज? कितने? एक पे एक ही पे हो जाता क्लियर। आज तक का रिकॉर्ड है 40-42 साल में एक टॉपिक पे एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया क्लास में, एक क्वेश्चन से ज्यादा। और आप में से कोई पेपर सेटर बन जाए और पेपर सेटर कर दे, अगर वो टॉप ना कर ले तो मेरे को कह देना। सर आपकी क्लास में सब बच्चों के फुल मार्क्स आते होंगे क्या जी? आपकी क्लास में सारे बच्चों के full हाँ ऐसा है। उसका जवाब मैं आपसे मानता हूँ। सारे बच्चे क्या सीरियसली होते हैं? क्या सारे यहाँ बैठे सीरियसली बैठे? कुछ पसंद। हाँ कुछ तो बहुत बढ़िया, 100%। यस। हाँ अभी मैं आपको बता दूं जो अगली बार 100% आएंगे हैं, प्रियांशु। हाँ जी, नाम अभी बता रहा हूँ, पेपर बना नहीं है, रिजल्ट आया नहीं, 100%। और बोलो। और ये प्रेडिक्शन मैंने बीकॉम प्रोग्राम में भी करी थी हैं, कई साल पहले। 5 बंदों को कहा था तुम्हारे 100 जो 100 का पेपर होता था। ऐसा नहीं है, टीचर को सब पता होता है कि बच्चा कैसा है। जो सीरियसली अटेंड करेगा और टाइमली आएगा पंक्चुअल, वो करेगा। लड़की एक ऐश्वर्य गर्ग थी जो नोएडा से आती थी, मतलब मेरा उसका टाइम बस 1 मिनट पहले ही, 1 मिनट 8:30 की क्लास, तो 8:25 पे, कभी मैं 8:25 पे, कभी 8:30 पे बस। और मेरी क्लास में बैठ के ही सबसे पहली स्टूडेंट होती थी, वो ब्रेकफास्ट करती थी और इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ती थी। शी इज इन लंदन नाउ। इंटरनल में उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, होल्डिंग कंपनी का। इंटेलिजेंट लड़की थी, मैंने उसको सॉल्यूशन बता के समझा के, ओ सॉरी गलती हो गई, मगर दोबारा ठीक कर। तब उसको 25 में 25 दिए। मैंने कहा तेरे वहां तो 75 आएंगे, कहाँ? एक्सटर्नल में, और तू इसकी वजह से रह जाएगी। तो मैंने उसके 25 करवाए इंटरनल में, मैंने इंटेंशनली बता रहा हूँ सबके सामने, और 75 100 आए थे पूरे। दिस इज कैलकुलेशन। नाउ शी इज इन लंदन। और दूसरी लड़की हमारी आरुषि जिंदल, शी इन हार्वर्ड। कमिंग आफ्टर 1 year she will be joining as CFO founder of a company like Mirae Asset at the remuneration of 5 crores per annum. देखिए 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, उनका जवाब हमें देना है। How to calculate expected number of employees with reference to which fair value of option is to be calculated. कैसे कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और हाउ टू कैलकुलेट टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इज टू बी विच शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये 3 क्वेश्चन अगर बेसिक क्लियर हैं, उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं। जब तक ये 3 क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मुश्किल रहता है। तो पहले क्वेश्चन का क्या जवाब है? How to calculate expected number of employees with reference to which we have to calculate fair value. Yes? सर करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में से एक्सपेक्टेड जो रिटायर होने वाले हैं उनको माइनस करें। जो एक्चुअली लीव कर गए या लीव कर सकते हैं? सर तो लीव कर सकते हैं, कर दे सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे सारे तीनों क्वेश्चन का जवाब मिलेगा।
मैडम पढ़ो भी क्वेश्चन को, फुर्सत से पढ़ेंगे ना, रिटेन में तो करना फिर यहाँ सॉल्यूशन क्या बताऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, on 1st July 2018, Tulsian Limited grants 100 option to each of the 2,100 employees at ₹60 when market price is 80. The face value of equity share is 10. Vesting date is 31st March 2021 and exercise date is 31st March 2022. ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इतनी एग्जाम में नहीं देंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन यू कैन से। 31st March 2019, 20, 21, 22। तो पहला देखिए आप, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज एट 31st March 2021 16201824 like that. Expected number of employees at 31st March 2022. Actual number of employees as at that date और मार्केट प्राइस। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से लेंगे, फर्स्ट, सेकंड या एक्चुअल लेंगे। पहले तो ये देखिए एक्सपेक्टेड लेना है या एक्चुअल लेना है, क्योंकि पहली डेट, पहला ईयर कब एंड हो रहा है, फर्स्ट ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March 19। तो 19 पे विच नंबर वी हैव टू टेक, पहले तो बताइए एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। Actual adjusted for any expected any तो फिर एक्सपेक्टेड ही आ गया ना। actual adjusted for any expectation। चलिए मैं समझ के बात, थोड़ा ये टॉपिक कम पढ़ा है आप लोगों ने, हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि नया टॉपिक है, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, डोंट वरी। एक्चुअली ये तो भूल जाओ, एक्चुअल तो ये जो एक्चुअल है ये वाला, ये तो भूल जाओ, ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया था, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं। हमें लेना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कौन सी डेट पे, विच डेट, 21 पे सर, 21 पे 21 पे, करेक्ट, 21 पे वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट पे कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे वो लेंगे, ठीक है। तो और वो कितने होंगे इस डेट पे, तो ये आंसर है उसका 16। ये कौन सी डेट पे है, 22 एक्सरसाइज डेट पे। तो ये भी आपको भ्रमित करने के लिए बेकार है, एक्सरसाइज डेट इज नॉट रेलेवेंट फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और एक्चुअल भी। तो कौन सा बचा, 21 क्या है, वेस्टिंग डेट, क्लियर। तो 16201824, हाँ 2100 मतलब आपने दिए कब दिए, ऐसा ये तो मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है, मैं इसकी मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, ठीक है। ये जो 2100 है 18-19 में कुछ एम्प्लॉय ने छोड़ा होगा, मतलब 100 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, कितने बन गए, 2000 बन गए। 100 का तो मतलब ही नहीं रहा ना, 2000 बन गए, मतलब अभी 19 की बात कर रहा हूं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में 20 में कितने एक्सपेक्टेड हैं जो छोड़ देंगे, इसको बोलता हूँ फॉरफीचर। ये फॉरफीचर वो नहीं है जो इश्यू ऑफ शेयर का, या फॉरफीचर भी बोल देते हैं, लिविंग भी बोल देते हैं, ठीक है। लेबर टर्नओवर वाला, हाँ टर्नओवर, कितने लोग छोड़ के चले जाएंगे, वो पर्सन। ये इन्फॉर्मेशन भी तो क्वेश्चन में होनी, हाँ होगी, यहाँ तो मैंने निकाल के दे रखे हैं मैडम, अभी उनसे होती है ना मैंने घूमने की जरूरत नहीं। अब देखो आसान क्वेश्चन हुआ तो घूम गए, और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। कैसे निकाले ना। एक बात समझनी थी,
यहाँ हम इधर लिख रहे हैं 31/5/21 और ऊपर लिख रहे हैं हम 31/5/19। 5 का लिखा है? 1620 की रेलेवेंस समझ नहीं आ नहीं 5 का लिखा है अरे ऊपर कॉलम वाइज ये हाँ ठीक है और इधर हम रो वाइज लिख रहे हैं 21। हाँ ठीक है तो वो समझना था सर, ये दोनों चीजें तो मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे ना क्योंकि आपका ध्यान क्लिक 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 बहुत पहले कर दिया। सुना समझाओ